Good afternoon students, welcome to today's video lecture of vector algebra. We have finished majority of the questions of miscellaneous exercise 10. So let us finish the remaining questions of miscellaneous exercise 10 of vector algebra. Question number 10 वो करें उसके पहले मैं आपको एक नोट दे देता हूँ. Can you recollect what is area of parallelogram? Area of a parallelogram is equal to magnitude of cross product. Magnitude of cross product of any two adjacent side vectors emerging from a common vertex. Emerging from common vertex. Emerging from a common vertex. ठीक है, साइड के टर्म्स में था adjacent sides. Consider parallelogram. OACD. Can you recollect? इसका एरिया हम कैसे निकालते थे? OACB. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB को क्या आएगा? अगर मैं वर्टेक्स ए में से निकालता हूं तो इट विल बी मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ OA क्रॉस OB. अगर कोई वर्टेक्स A से कंसीडर करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी फाउंड आउट यूजिंग वर्टेक्स O A C और B. तो पहले अगर मैं वर्टेक्स O निकालता हूं उसका यूज करके तो कितना आएगा? मॉड ऑफ OA क्रॉस OB. सेकंड वे यू कैन फाइंड इज AO. A में से कौन सी निकल रही है? AO और AC. So AO cross AC. Third way you can also find is mod of क्या है? C में से कौन सी निकलती है? CA cross CB, which is equal to fourth way में अगर B में से कंसीडर करूं तो BO cross BC. ठीक है. Now this में question number 10 उन्होंने दिया है two adjacent sides of the parallelogram. ये दिया हमारे. ओके, दूसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और दूसरा आपको याद रखना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वो भी आप याद रखो. मैंने पिछले क्लास में आपको ट्रायंगल लॉ का रिवीजन करवा दिया. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इन पैरेललोग्राम OA, कंसीडर इन पैरेललोग्राम OACB, इन पैरेललोग्राम OACB ही हम कंसीडर करेंगे. OACB. OA को अगर मैं रखता हूं A बार और OB को मैं रखता हूं B बार, then can you recollect? OC, the diagonal OC will be A plus B. Yes or no? So in parallelogram OACB, let OA is equal to A bar, OB is equal to B bar. Then by parallelogram law OC क्या होता है? The diagonal OC will be equal to OA plus OB. The diagonal OC अगर OA is A bar तो A bar plus B bar आएगा. If OB is B bar, याद रखना पड़ेगा. और इसी में अगर आप याद रखो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB क्या आएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB हो जाएगा मॉड ऑफ OA क्रॉस OB which is मॉड ऑफ A क्रॉस B. इसी को अगर आप कंटिन्यू करो इधर इसी डायग्राम को, ये दो नॉलेज चाहिए आपको इस सम में. ओके, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B. तो बाय पैरेललोग्राम लॉ दिस इज A plus B. और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB क्या आता है? मुझे OA पता है. So OA cross OB, magnitude of cross product of two adjacent sides. So mod of A cross B. Now question number 10 करो. अगर ये नहीं आता है तो आपको वो सम नहीं आएगा. Okay, question number 10 says two adjacent sides of a parallelogram are given by. Okay, consider parallelogram OACB
CB. Consider parallelogram OA CB. Okay, OA CB. In parallelogram OA CB, the two adjacent sides are given by, तो OA को रखो A बार, फिर OB को रखो आप B बार. So two adjacent sides. Find the area. और दूसरा ये भी पूछा है, find a unit vector parallel to its diagonal. Now see, that's a very nice question. A unit vector parallel to the diagonal, मतलब unit vector in the direction of the x bar. वो theory का use करना पड़ेगा. Okay. So consider parallelogram OA CB. तो आप दो adjacent sides OA और OB रखो. Let OA is equal to A bar. Let OA consider parallelogram OA CB, and then write let OA is equal to A bar, OB is equal to B bar. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा two adjacent sides O A C B. This is A bar, adjacent side. This is B bar. So by parallelogram law, what will be OC? By parallelogram law, OC will be A plus B. पहले आप क्या निकालो? आप पहले निकालो area of parallelogram OACE. Okay, now here A bar, two adjacent sides. A bar कितना दिया हुआ है? Two adjacent sides are 2i minus 4j, 2i cap minus 4j plus 5k cap. Okay, you can write A bar is equal to OA here in parallelogram OACB. OA which is equal to A bar कितना दिया हुआ है? 2i minus 4j plus 5k. OB which is we have considered as B bar कितना दिया हुआ है? I cap minus 2j cap minus 3k cap. So therefore, to A vector which is A bar कितना आएगा? In the form of components 2 minus 4 5. O B vector कितना आएगा? OB vector हो जाएगा B bar. In the form of components कितना आएगा? 1 minus 2 minus 3. क्या पूछा है? Find its area. तो पहले एरिया निकाल दो. Suppose कि क्वेश्चन हो 2 मार्क के लिए या सब्जेक्टिव पोर्शन में in the question there are 2 to 3 things asked. आप लोगों को जो आता है पहले वो तो निकाल लो. अगर आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द डायगोनल नहीं आता है तो पहले आपको एरिया निकालना आता है. यू कैन फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB क्या होता है? मॉड ऑफ OA क्रॉस OB which is mod of A cross B. तो A क्रॉस B निकालना है आपको, तो A बार पता है आपको, B बार पता है, अब सीधा A क्रॉस B निकालना है. ठीक है, मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे. सो देयरफॉर A बार कितना है? A बार is 2 minus 4 minus 5 2 minus 4 5. B bar is how much? B bar is 1 minus 2 minus 3. तो A क्रॉस B निकालो. Therefore A क्रॉस B कितना होगा? Expansion of the 3 cross 3 determinant. जिसका फर्स्ट रो है I, J के सेकंड रो will be 2 minus 4 5. The third row will be 1 minus 2 minus 2. You can do it directly. 4 minus 12 plus 10 22. So 22 I cap minus J and all that stuff. Minus J into minus 6 minus 5 minus 11. So plus 11 हो जाएगा और plus k cap into कितना आएगा? minus 4 plus 4 0 k cap आना चाहिए. अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप लोग आराम से डिटेल में करो. I cap कितना आएगा? 4 minus plus 4 3 12 minus plus 10 minus j cap into कितना आएगा? minus 6 minus 5 plus k cap into कितना आएगा? minus 4 plus 4 minus 4 plus 4. So A cross B will be A cross B is I cap into 22 minus j cap into minus 11 plus k cap into 0. So that is 22 I cap. Yes, you can avoid this step and you can write directly A cross B is 22 I cap plus 11 j cap plus 0 k cap.
सो A क्रॉस B कितना आया, A क्रॉस B आया 22 11 0। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ऑफ A क्रॉस B, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, हो गया। तो सपोज इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, you get 1 mark for finding area. If the 3 mark question or a 4 mark question, you get half. तो एक जो चीज आती है वो आपको आराम से पहले निकाल देनी चाहिए। मॉड ऑफ A क्रॉस B which is square root of mod of A क्रॉस B is square root 22 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। So therefore mod of A cross B is nothing but what is 484 plus 121 plus 0. So 484 22 का square 22 into 22 484 and 11 into 11 is 121 plus 484 that is 605. The square root of 605 होना चाहिए। Which question we are doing? We are doing question number 10. 10th का आंसर okay 605. So that is square root of 605 divided by 2.2. So this is square root of 605. This is square root of 605. So mod of A cross B is equal to square root of 605. अगर आप 5 से डिवाइड करो 5 1s are okay. So this is nothing but square root of 121 into 5. Yes, 121 into 5 605 divided by 5 is 121 और ये होता है 11 root 5. This is 11 root 5. So mod of A cross B is 11 root 5. So mod of A cross B कितना आया, therefore mod of A cross B is 11 root 5. So therefore area of parallelogram is area of parallelogram। अगर आपने डायरेक्टली एक बार और दो बार रखा तो भी चलता। So area of मैंने parallelogram में रखा है OACB, वो था डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ अभी mod of OA cross OB। Okay, mod of OA cross OB which is equal to mod of OA cross OB कितना आएगा, mod of A cross B which is how much 11 root 5 centimeter square meter square नहीं 11 root 5 square units because area होता है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इधर A cross B कितना था, A cross B था 22 11 0 mod of A cross B कितना था 11 root 5। अब मैंने आपको पैरेललोग्राम सिखाया, उन्होंने क्या पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल। तो इसके लिए यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इसके लिए आपको अगर याद नहीं है पैरेललोग्राम लॉ तो दैट्स व्हाई दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो OACB में OC क्या होता है OA प्लस OB, so C इज इक्वल टू A प्लस B आएगा। A बार कितना है, A बार कितना है, A क्रॉस B की अब जरूरत नहीं है, A क्रॉस B की मुझे अब जरूरत नहीं है। ठीक, E बार कितना था, ओके ठीक है, A क्रॉस B 22, 11, 0 था। एरिया which question we were doing? We were doing question 11 0 and mod of A cross B ये आ गया था 11 root 5। ठीक है, अगर उसकी जरूरत पड़ी तो पैरेललोग्राम OACB में डायगोनल क्या है OACB, दिस इज A बार, दिस इज B बार, सो OC कितना आएगा A plus B, yes or no? Yes. So in parallelogram OACB OC is equal to OA plus OB. So therefore vector OC diagonal OC is equal to A bar plus B bar. Okay, तो इसमें मुझे A cross B की जरूरत नहीं है, मुझे A plus B करना पड़ेगा। वेक्टर A कितना था, the two adjacent sides were 2 pi here A bar is here A bar कितना था 2 minus 4 5 2 minus 4 5 B bar कितना था, B bar था
रहा हूं डायगोनल ओसी वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी और अब इसके बाद आप देना ओसी। फिर उन्होंने पूछा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायगोनल। तो डायगोनल पैरेलल टू ओसी क्या होगा? मॉड ऑफ a प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी। सॉरी, सो ओसी इज a प्लस बी अगर आप करोगे 2 प्लस 1 दिया आएगा, डायरेक्टली करो। फिर -4 प्लस -4 प्लस -2 इज -6 में डायरेक्टली ऐड कर रहा हूं और ओके 4 ओसी इज इक्वल टू 2 -4 5 प्लस 1 -2 -3 4 प्लस 1 3 -6 और फिर इतना आएगा 5 प्लस 3 2। ये आ गया हमारा this way we have got OC, diagonal OC. Now what is mod of OC? Therefore what is mod of OC? Mod of OC is square root of 3 का square 9 minus 6 का square 36 minus 2 का square 4. So mod of OC is square root of 34 plus 40 49. So root 49 which is 7. Okay, और दूसरा OC कितना था 3 minus 6 2 और यूनिट वेक्टर क्या था? पैरेलल। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल पैरेलल टू x bar is unit vector in direction of x bar. ओके ये स्टेटमेंट में जो लिखा हूं कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x bar लेट फॉर x bar नॉट इक्वल टू नल वेक्टर। अगर वो वेक्टर है नॉट इक्वल टू नल वेक्टर तो मैंने आपको रिजल्ट क्या सिखाया था कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x bar इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x bar और क्या होता है x bar अपॉन mod x। ये सब चीजें तो मैंने सारे थियरीज एक्सरसाइज के पहले जब भी मैंने लिखाई है, अगर आपने वो अच्छे तरीके से क्लब करके लिखे हैं हमारे रिजल्ट्स तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रहेंगे। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू x bar पैरेलल टू x bar वो होगा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ x bar इन डायरेक्शन ऑफ x bar वो होता है x bar अपॉन mod x। तो पूछा गया है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल OC वेक्टर, सो इट विल बी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डायगोनल OC। तो कितना है OC वेक्टर अपॉन mod ऑफ OC। सो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल OC पैरेलल टू डायगोनल कौन सा वेक्टर है OC will be equal to unit vector in the direction of diagonal OC will be equal to unit vector in the direction of diagonal OC में लिख रहा हूं, डायगोनल में ऐड कर रहा हूं तो वो कितना आएगा x bar अपॉन mod x। सो वो था OC वेक्टर अपॉन mod of OC 7 था और OC वेक्टर है 3 minus 6 2। This you can think as 1 upon magnitude of OC into OC vector. So that is 1 upon 7 into 3 minus 6 2। 3 minus 6 2 आप ऐड करके देख सकते हो 2 plus 1 3 minus 6 2। Okay, so 3 by 7 minus 6 by 7 2 by 7 3 by 7 minus 6 by 7 yes। Okay, उन्होंने 1 by 7 कॉमन निकाला। तो दिस इज राइट है I cap J cap और K cap के टर्म्स में उन्होंने ये आंसर रखा है 1 by 7 यहाँ पे आंसर छोड़ दिया है और फिर I J K के टर्म्स में लिख दिया है। मैं इसको लिखता हूँ 3 by 7 I cap minus 6 by 7 J cap plus 2 by 7 K cap, you can take out 1 by 7 common 3 I cap minus 6 J cap plus 2 K cap, and you can also write this as
157। अब देखो, अगर आपको सारी थियरी जो मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई है अगर वो आती है तो पूरी एक्सरसाइज यू कैन डू इट ऑन योर ओन। 3 - 6 whichever way, this is the answer, this is the answer, this is the answer. 3 ways of writing the answer. Okay, 1 then 2 multiply करके ये लिखो और ये 4 ways, 4 ways of writing the answers. MCQ में पूछा जाता है ये जेईई में, तो आपको ये आना चाहिए। Okay, now अब आप लोग we will do the question number, we will do the question number, we have finished question number 10. Now let us do question number 9. Let us do question number 9. Let us do question number 9. तो question number 9 के लिए मैंने आपको वो थियरी पिछले क्लास में सिखाई थी कि अगर P divides line segment AB from A side internally or externally, P divides line segment, suppose P divides line segment AB from A side internally or externally in the ratio k:1. Suppose, note याद रखो, suppose point P divides line segment AB from A side, हमको पता नहीं है internally या externally, from A side internally or externally, internally or externally in ratio k:1, in ratio k:1. तो रेशियो k होगा और रेशियो k होगा और k belongs to r minus 0 minus 1. Here k cannot be 0 or -1. कौन डिवाइड कर रहा है? P. तो मैंने क्या बोला था? तो डिवाइडिंग पॉइंट हम रखेंगे P r bar which is P x y z. तो हम खाली पोजीशन वेक्टर में जाता है। तो डिवाइडिंग पॉइंट P r bar इनिशियल पॉइंट हो जाएगा A which is suppose I keep as A bar और एंड पॉइंट हो जाएगा B. एंड पॉइंट हो जाएगा B और सपोज उसका पोजीशन वेक्टर B बार है। तो कैन यू रिकलेक्ट? तो therefore r bar, मैंने क्या बोला था? therefore r bar is kb bar plus a bar upon k plus 1. और इसको हमने कैसे याद रखा था? पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट इक्वल टू k क्या है? रेशियो इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट अपॉन रेशियो प्लस 1. अगर आप ये याद रख सकते हो and no one will give you wrong if you follow this method. This way you can solve this example very easily. This sum can be solved very fast. Question number 9. अगर आपको ये याद है, m और n से भी मैंने सिखाया, तो अगर किसी को m और n में कंफ्यूजन होता है तो आपको ये मेथड रखना है। और हाँ, नोट क्या रखना है कि आपको वैल्यू ऑफ रेशियो k is positive for internal division, मतलब अगर divides internally, और दूसरा वैल्यू ऑफ रेशियो k is negative for external division. अब वो एक्सटर्नल और इंटरनल डिवीजन क्या है वो सब मैं आपको नहीं बताता, वो सब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया हुआ है। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9 बेस्ड ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 9 बेस्ड ऑन इट क्या लिखा है कि the position vector of r divides line segment joining p and q whose position vectors are externally in the ratio 1:2. Okay, r divides here, okay, position vector of, मैं लिखता हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ P. पोजीशन वेक्टर ऑफ P is 2a plus b bar. ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज बेटर. पोजीशन वेक्टर ऑफ P. ओके, सो मैं लिख देता हूं
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P कितना दिया हुआ है 2a plus b बार 2a plus b। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q कितना दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q इज गिवन एज a minus 2b, a minus 2b। और कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, पॉइंट D, अरे पॉइंट R डिवाइड्स, पॉइंट R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ। अब वो नहीं दिया है फ्रॉम P साइड या यू कैन से Q साइड, तो जिस ऑर्डर में पहले P दिया है और दूसरा Q दिया है तो आपको फ्रॉम P साइड अज्यूम करने का, और एक्सटर्नली दिया है तो एक्सटर्नली का मतलब जो रेशियो होगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हियर पॉइंट R, हियर पॉइंट R डिवाइड्स कौन सी लाइन सेगमेंट है, पहले P दिया है और फिर Q दिया है, सो PQ फ्रॉम P साइड रखने का, और उन्होंने दिया है एक्सटर्नल, और एक्सटर्नली का मतलब रेशियो नेगेटिव है, एक्सटर्नली इन रेशियो कितना है 1:2। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो जो K है, रेशियो हमारे सिंबल में K था वो कितना है -1:2, -1:2 इज माइनस ऑफ 1:2, मतलब रेशियो कितना है K, K नेगेटिव आएगा, मैंने नोट लिखा है। तो रेशियो हमारे थ्योरी में कितना है, रेशियो व्हिच इज K, तो मैं क्या रखूंगा -1:2 मतलब -1/2। ओके, कौन डिवाइड कर रहा है, डिवाइडिंग पॉइंट कौन है, डिवाइडिंग पॉइंट R हो जाएगा R, इनिशियल पॉइंट कौन है P, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है 2a plus b बार, और एंड पॉइंट कौन हो जाएगा, therefore एंड पॉइंट इज Q, एंड पॉइंट इज Q देते हैं, और एंड पॉइंट Q है और उसका पोजीशन वेक्टर है a - 2b। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि R is equal to, therefore position vector of the dividing point, so position vector of dividing point कौन है, position vector of dividing point क्या है, therefore position vector of R is equal to क्या था, रेशियो, रेशियो मतलब K into position vector of end point क्या होता है Q, ऐसा है तो वापस वो रिजल्ट ऐसा है तो वापस लिख लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट लास्ट टाइम लिख रहा हूं इज इक्वल टू रेशियो इनटू कितना था, पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। अगर आपको फॉर्मूला याद है कि x2 + x1 / k + 1 वही फॉर्म में है, आप समझ जाओ x2 किसका x कोऑर्डिनेट है, x1 किसका x कोऑर्डिनेट है और x किसका x कोऑर्डिनेट है, y = p/2 + y1 / k + 1। अगर वो रिजल्ट आपको अच्छी तरीके से लर्न हो गया है तो ये भी बहुत इजीली आप कर सकते हो। एग्जाम में अवॉइड पोजीशन वेक्टर ऑफ R रेशियो क्या है k इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट कौन है Q प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P अपॉन K + 1, और एक्सटर्नल डिवीजन है इसलिए K की जगह -1/2 सब्स्टिट्यूट तो आ गया, सब्स्टिट्यूट तो आ गया। इसी लॉजिक से ऐसा होगा तो मैं एक एग्जांपल है आपको करके देता हूं, देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो विद M और N मेथड और यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस मेथड। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R मैंने क्या रखा था, R बार -1/2 इनटू कितना होता है a बार -2b बार प्लस p का पोजीशन वेक्टर कितना है 2a + b, 2a + b whole upon -half + 1 -half + 1। Take the LCM and finish it off. Take the LCM and finish it off. Take the LCM and finish it off। 2 कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, so R is equal to
minus 1 into a minus 2b plus 2 into 2a plus b whole upon minus 1 plus 2. So r bar will be minus a bar plus 2b bar. Sometimes ये धीरे धीरे आती है plus 2b bar upon 1 upon. Sometimes this comes as an MCQ. और हाँ वो लोग रेशियो के लिखेंगे, m और n नहीं होगा, तब आपको फिर ऐसे करना पड़ेगा. मतलब रेशियो दे देना because 1:2 or something like that, आपको k लिख देना पड़ेगा. उन्होंने लिखा होगा k, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा. Therefore r bar is कितना आएगा 4a minus 8 3a plus 4b 3a plus 4b 3a plus 4b 3a plus 4b something wrong. Position vector of p कितना है? Position vector of p is 2a plus b 2a plus b और a minus 3b है. Sorry a minus 3b है, minus a minus 3b है, minus a plus b हो जाएगा. Sorry, so कितना आएगा minus a plus 4 3a plus 5 3a plus 5 3a plus 5. Therefore in r bar, therefore position vector of r which is r bar कितना आया 3a plus 5. ओके, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने रखा था. पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन है, प्लीज मिस्टेक वापस सॉल्व नहीं करूंगा. नोट मिस्टेक क्या थी? पोजीशन वेक्टर ऑफ p, अरे q मैंने गलत से लिखा था, a माइनस 2b लिखा था, a माइनस 3b दैट करेक्शन यू प्लीज डू प्लीज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या पूछा है? आल्सो फाइंड also show that P is the midpoint of the line segment RQ. Okay, midpoint of RQ. Okay, position here P क्या है? Here P क्या है? Position vector of P कितना है? Midpoint कब होगा? जब position vector of what is the position vector of midpoint? Position vector of midpoint of AB क्या होता है? वो आपको पता ही है, तो वो सीधा निकाल दें. हमको क्या प्रूव करना है? कि show that P is the midpoint of line segment RQ. तो r का पोजीशन वेक्टर निकाल चुके हैं, तो r का पोजीशन वेक्टर हम निकाल चुके हैं. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ r, पोजीशन वेक्टर ऑफ r कितना आया 3a plus 5b. पोजीशन वेक्टर ऑफ q कितना है a minus 3, और पोजीशन वेक्टर ऑफ p कितना था 2a plus b. ओके, नाउ मिडपॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ मिडपॉइंट ऑफ r कैसे निकालेंगे? वो डायरेक्टली मैं लिखता हूं, उसके लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है. तो आप लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिडपॉइंट ऑफ r3 is equal to position vector of r plus position vector of q upon 2. midpoint of AB, अगर a x1 y1 और b x2 y2 x1 plus x2 y2 y1 plus y2 y2, therefore position vector of line segment R2 is equal to position vector of R plus position vector of Q whole by 2. ऐड करो. position vector of R कितना है 3a plus 5b 3a plus 5b plus कितना है a minus 3b whole by. और हाँ, हर एक वेक्टर के ऊपर एरो आपको करना पड़ेगा because that is the way the notations are given in our NCERT textbook. You cannot use the notation given in the old Gujarat board textbooks. Last year उन्होंने allow किया था, पर इस साल allow नहीं करेंगे. So some students will be told कि ऐसा हम कर सकते हैं by suppose some teachers or some seniors, then you will be given wrong in your board examination. So be very very careful. 3a plus k 4a plus 5b minus 3b is 2b upon 2. 2 से डिवाइड कर तो 2a plus b आ जाता है. 2a plus b आ जाता है जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ q. So that is the midpoint. So there पोजीशन वेक्टर ऑफ r के मैंने क्या लिखा है? सॉरी, पोजीशन वेक्टर ऑफ midpoint of rq is
पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ आर। अब आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 कॉमन, 2a plus b whole by 2 which is equal to 2a plus b which is equal to 2a plus b which is equal to position vector of p. So position vector of midpoint of r cube is equal to position vector of p. So p is the midpoint of r cube. ठीक है, मैंने midpoint of r cube निकाला और उसी का यूज करके right, therefore position vector of midpoint of line segment r2 मैंने प्रूव किया, position vector of p, therefore p is midpoint of, therefore p is midpoint of r2 fresh, p is midpoint of r2 fresh। तो हमने कर दिया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे रहे उसके पहले व्हाट आई विल डू इज दैट ऐसा ही एक इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूं तो आपको इजीली समझ आ गया। कंसीडर 2 पॉइंट्स whose position vectors OP and OQ are given। So position vector of P दिया है, position vector of P which is OP vector मतलब it is origin, वो कितना है 3a minus 2b। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कितना दिया है, ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ P which is OP कितना है 3a minus 2b, 3a minus 2b। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कितना है OQ which is how much, which is a plus b। और उन्होंने पूछा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R divides the line segment of P and Q in the ratio 2:1 internally and externally। मैंने क्या बोला, इंटरनली के लिए रेशियो को प्लस रखने का और एक्सटर्नली के लिए रेशियो को नेगेटिव रखने का। और इस बार हम वो थियरी यूज नहीं करेंगे कि मतलब वी विल नॉट रट्टा मारो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट इज रेशियो इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ द एंड पॉइंट प्लस position vector of the initial point upon ratio plus 1, वो आपको पता है। So position vector therefore P of P, so position vector of P हो गया 3a minus 2b और position vector of Q is how much, a plus b। First case, point R divides line segment PQ from P side, you take it as internally, आप लिखो internally from P side, internally in ratio कितना दिया हुआ है 2:1। ओके, 2:1 तो हमारा रेशियो क्या फॉर्मूला है के, और सिंस इट इज इंटरनल डिवीजन तो प्लस में रहेगा 2/1 2 बिकॉज़ इंटरनल डिवीजन। ओके, सो देयरफॉर पोजीशन और इनिशियल पॉइंट कौन हो जाएगा, देयरफॉर डिवाइडिंग पॉइंट कौन है, डिवाइडिंग पॉइंट इज आर, डिवाइडिंग पॉइंट आर है, इनिशियल पॉइंट पी है और एंड पॉइंट क्यू है, एंड पॉइंट Q है। तो therefore R बार पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ R से काफी बार वो याद नहीं रहता है बच्चों को। तो therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ R is equal to रेशियो क्या है K into पोजीशन वेक्टर ऑफ रेशियो मतलब K into K x2 plus x1 upon K plus 1। तो K फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या रखेंगे, एंड पॉइंट Q प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट P अपॉन रेशियो प्लस 1 P प्लस 1। बस आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। अगर आप लोग सेकंड केस जब एक्स्ट्रा करना है तो आपको फिर कैसे करना पड़ेगा, आपको इसी चीज को K that is 2, so 2:1, so K is 2, so 2 times position vector of Q कितना है, position vector of Q is A plus B plus position vector of P कितना है, position vector of
a plus b और वो था 3a minus 2, 3a minus 2b upon a plus 1, 2 plus 1, 2a plus 2b plus 3a minus 2b upon plus 1, 3 to 5a by 3 bar. Yes, 5a bar upon 3. देखो कैसा कोई और आप पोजीशन वेक्टर ऑफ q और p भी लिख देता हूं सपोज पोजीशन वेक्टर ऑफ q कितना था पोजीशन वेक्टर ऑफ q कितना था a plus b और इधर लिख दो पोजीशन वेक्टर ऑफ p कितना था pa minus 2. सेकेंड केस क्या आएगा सेकेंड केस पॉइंट r divides q from p side externally suppose externally देखो बहुत इजी हो जाएगा externally in ratio 2:1 तो रेशियो के नेगेटिव लेना बिकॉज़ एक मिनट जब वो पॉजिटिव रखा था तो आप प्लीज लिखना a equal to 2 बिकॉज़ इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नली है इसलिए -2 नेगेटिव साइड बिकॉज़ एक्सटर्नल डिवीजन दैट इज अंडरस्टूड एक्सटर्नली को मैंने लाइन दिया है इसलिए -2 डिवाइडिंग पॉइंट था इनिशियल पॉइंट p एंड पॉइंट p सेम चीज रहेगी इधर क्या आएगा यस इधर आएगा -2 प्लस और इधर हो जाएगा -2 प्लस 1 तो यहाँ पे कितना आएगा -2a -2b तो देखो तुरंत आंसर आएगा आपको समथिंग लाइक m और n करने की जरूरत नहीं है बट सपोज यू आर कंफर्टेबल विद m and n then you can go with that also so -2a फॉर्मूला वही रहता है k into position vector of q plus position vector of p upon p plus 1 so -2 into a plus b plus a minus 2b over -2 plus 1 नीचे हो जाएगा -1 कन्वर्ट में क्या है -2a bar -2b bar plus 3a bar -2b खत्म करो आई थिंक ये बता तो ये एग्जांपल मैंने कर दिया तो फिर आपको अब इसका डाउट करना चाहिए ये हो जाएगा -2a bar -2b bar plus 3a bar -2b bar whole upon -1 so -2a minus 3a is -a और -2b minus 4b will be -4b your choice whichever way you want to take the answer so नीचे क्या आएगा -2a minus a so that is a bar minus 4b bar a bar minus 4b bar upon -1 ऊपर से माइनस का साइन कॉमन निकालो 4b bar minus a bar upon -1 minus gets cancelled and then you get the answer okay now some students को सपोज ये a वाला मेथड नहीं पता है और उनको m और n वाला मेथड करना है सपोज उनको m और n वाला मेथड करना है तो फिर क्या करेंगे तो लेट मी गिव यू दैट थियरी आल्सो और वो थियरी में r p और q के टर्म्स में ले रहा हूं सो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB बाय हमें ये थोड़ी होता है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB बाय P नहीं होता है सपोज डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट PQ बाय R सो लेट कीप ऑन चेंजिंग लेट ये तीनों पॉइंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए सो P is not equal to Q is not equal to R and R belongs to line PQ तो R कहां पे हो सकता है R कहां पे हो सकता है it can be between P and Q it can be between P and Q it can be before P it can be after Q तो तीन केसेस हैं पहला केस इंटरनल डिवीजन बाकी केस एक्सटर्नल डिवीजन और वो तीनों केस में आपको कैसे करना है मैं आपको समझाऊंगा ओके सीधा आपको याद रखना है let position vector of here let P bar let P be P bar Q a position
पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, q बार और r का सपोज r बार। शुड आई कीप डिवीजन ऑफ dv बाय p ही रहेगा, दैट विल बी इजी टू डू। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट ab बाय p। तो let a is not equal to b, a is not equal to p, and p belongs to line AB. Suppose it 0 points. A का पोजीशन वेक्टर है a बार, b का है b बार और p का है r बार। So here a बार, b बार और p r बार है। Okay, let. So first case is a dash b, a dash b. So p divides here, p divides here, p divides line segment AB from a side internally in ratio, say in the ratio suppose m is to n है। तो आपको याद रखना है कि रेशियो प्लस में होता है, तो रेशियो आपको रखना है m by n पॉजिटिव। और आपको याद रखना है कि r बार क्या होगा, r बार will be m into b बार plus n into a बार upon n plus n। ऐसा हमने किया है, ठीक है। फिर एक्सटर्नल डिवीजन हो दोनों केस में, फॉर दोनों केस p dash b और a dash b दोनों केस, फॉर पहला केस, सेकंड केस p dash a b। एक्सटर्नल डिवीजन में दोनों साथ में ले रहा हूं, a dash b। सो ये आएगा p dash a b सपोज, और एक्सटर्नल डिवीजन की बात हो रही है, और a dash b, और इसका डायग्राम आएगा a dash b। दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन एंड दिस इज द केस ऑफ इंटरनल डिवीजन, ठीक है। सो इन दोनों इस केस में भी आपको क्या याद रखना है, p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, p डिवाइड्स here p divides दोनों केस में लाइन सेगमेंट AB from a side पर, हाँ कैसा बनाएगा, externally in ratio m square। ओके, तो रेशियो क्या है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, माइनस m by n। और आपको याद रखना है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ p जो r बार है वो कैसे मिलते, r बार इज mb बार माइनस na बार अपॉन m माइनस n। ऐसे आपको मैंने सिखाया था। अगर इसका यूज करके हमको एग्जांपल नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है तो कैसे करेंगे। पहले मैं एग्जांपल नंबर 11 ले लेता हूं और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों को फिर whichever method is convenient to you can do it। और इस केस में इनिशियल पॉइंट कौन है, p, अरे इनिशियल पॉइंट कौन है, a बार, डिवाइडिंग पॉइंट कौन है, b बार, और सॉरी for here for a dash b or p dash b or a dash b डिवाइडिंग पॉइंट कौन था, p डिवाइड कर रहा था, सो डिवाइडिंग पॉइंट p r बार है। इनिशियल पॉइंट है a बार। See, काफी स्टूडेंट्स they prefer that a वाला मेथड, काफी स्टूडेंट्स are comfortable with MLN method। Picture method you like I have taught you, no one will give you wrong if you do by that method or this method। Okay, let me first do example number 11। Okay,
पोजीशन वेक्टर ऑफ P, OP दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P OP is given as 3a minus 2b, और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q is given as OQ. Obviously O is the origin, a plus, आपको मैंने जानबूझ के पहले आई थॉट आई शुड गिव यू डिविजन ऑफ लाइन सेगमेंट PQ by R, पर मैंने जानबूझ के सिंपल रखा है डिविजन ऑफ लाइन सेगमेंट AB by P, और फिर आपको इसके साथ कनेक्ट करना है ताकि आपको कोई भी मिस्टेक नहीं, और आप देखना कैसे मैं करता हूं आराम से 2 इजीली आ जाएगा। Therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ P इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना है, ओके डायरेक्टली इक्विवेलेंट 3a minus 2b, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q वो कितना है, a plus b, ना ये हो गया। अब हमको दिया है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट PQ फ्रॉम P साइड एक्सटर्नली और इंटरनली इन रेशियो 2:1। पहला केस, पॉइंट R divides line segment PQ from P side पर कैसे, इंटरनली इन रेशियो 2:1। तो रेशियो पॉजिटिव रखने का इंटरनल डिवीजन में इसे इंटरनली और 2:1 का साइड लाइन करो, तो रेशियो m/n, m by n कितना है 2/1, so therefore m कितना हो गया, m is 2, n is 1, or you can write therefore m by n is 2/1, so m is 2, n is 1, very simple। 2 n is 1 कौन है डिवाइडिंग पॉइंट कौन है, इधर R, इनिशियल पॉइंट कौन है P, और एंड पॉइंट कौन है, एंड पॉइंट है Q, so therefore dividing point is R, initial point becomes P and end point becomes Q। तो आपको पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या था, R bar is equal to R bar का पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ R will be equal to m into पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट, m into b bar plus n into a bar upon, now you cannot compare this with a bar and b bar, already a और b में दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ q plus n into पोजीशन वेक्टर ऑफ n a bar, so पोजीशन वेक्टर ऑफ p upon n plus n, और n plus n सब्स्टिट्यूट करो n की जगह पे 2 into पोजीशन वेक्टर ऑफ q कितना है, a plus b plus n कितना है 1 into 3a minus 2b upon n plus n, 2 plus 1 finish it off, तो इतना आएगा 2a plus 2b plus 3a minus 2b upon 3, 2b gets cancelled, 5a upon 3, same way you get the same answer, your choice। हाँ इसमें आपको याद रखना है इधर प्लस और n प्लस, मतलब ये भी वैसे याद रखना है m into पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट प्लस n into पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट अपॉन n प्लस n, अगर आप डिवाइड बाय कर दोगे तो m बाय n रेशियो आ जाएगा, ठीक है, और वो माइनस में आएगा m into पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट माइनस n into पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट अपॉन m माइनस n, that is answer is correct। yes 5a minus 3। सेकंड केस क्या था, point R divides PQ from external, okay, now it is dividing externally in the ratio 2:1, तो रेशियो में एक्सटर्नली कितना आएगा माइनस m by n, रेशियो हमेशा एक्सटर्नली में नेगेटिव होता है, so therefore रेशियो which is minus m by n वो हो जाएगा minus 2/1, so therefore
m by n कितना आया माइनस 2 बाय 1 माइनस माइनस प्लस, तो m by n कितना आया m by n कितना आया 2 by 1, तो m की वैल्यू 2 ही रहेगी, n की वैल्यू 1 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नली है। सो देयरफॉर m इधर आएगा माइनस और इधर आएगा माइनस, नथिंग एल्स, नो चेंज, माइनस माइनस 1, सो माइनस 3a प्लस 3 अपॉन 3, देखो आप चेक करो 2a माइनस a, सो माइनस a प्लस और 2 माइनस 1 आएगा, 2 माइनस 1 is 1, तो इसका आंसर कितना आएगा आप चेक करो, इट इज 2a माइनस a is माइनस a, so it is माइनस a प्लस 4b, माइनस a प्लस 4b क्या होता है 4b प्लस माइनस a प्लस 4b माइनस, ठीक है, दोनों आंसर आए। So your choice, how you want to solve, how do you want to solve, which is equal to 4b plus minus a, which is 4b minus a, okay, done। और हाँ, we have finished probability, we have finished differential equation, those chapters and integration पहले और application of derivative, see those chapters have a lot of weightage और उसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, उसमें ज्यादा एप्लीकेशन वाले सम्स हैं, वेक्टर और 3D थोड़ा इजी भी है, इसलिए मैंने हाथ में लिया है वेक्टर और 3D पर। हाँ अभी मैं ले रहा हूँ तो आपको फिर इसमें 2 राउंड ऑफ प्रैक्टिस इज इनफ, और 2 राउंड करने पड़ेंगे वरना आपको नहीं आएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज 10, मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर, ओके लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 9 again. Question number 9 again. Okay, find the position vector of R dividing line segment joining P and Q whose position vector is externally. Okay, position vector of, और हाँ आगे नोट भी लिख दो, आप नोट भी लिख दो कि position vector of midpoint of line segment AB will be equal to position vector of A plus position vector of B whole by 2। इसका रटावाली की जरूरत नहीं है कि बार प्लस बार आएगा, बिकॉज हमेशा ए बार और बी बार नहीं होगा, कंफ्यूजन करने के लिए अब देखो वो लोग ए प्लस 2b and 3b ऐसे देते हैं ताकि कंफ्यूजन हो, स्टूडेंट्स को वहां पे कंफ्यूजन होता है और वहां पे उनके आंसर्स रॉन्ग आते हैं, नथिंग एल्स। सो बी वेरी 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 आर सॉल्विंग। सो दैट फिनिशेस। Okay, now let me do miscellaneous exercise 10 का, sorry, miscellaneous exercise 10 question number 9 using MLN method। Position vector of P कितना दिया हुआ है, position vector of P, position vector of P is given as 2a plus 2, okay, position vector of Q is given as a minus b, okay, और कौन डिवाइड कर रहा है, r डिवाइड कर रहा है, so r divides here, r divides line segment PQ from, see line segment joining the points P and Q है ना, इसलिए from P side लिखना, from P side पर कैसे दिया है, from P side externally, तो उसको लाइन करना, externally in ratio, वो रेशियो कितना है, इन द रेशियो 1:2, तो रेशियो हमारा नेगेटिव में आता है और हमको m और n यूज करना है, सो माइनस m by n इज माइनस हाफ, सो माइनस m by n कितना आया, माइनस m by n, therefore माइनस m by n इज माइनस हाफ, therefore m by n इज हाफ, तो m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2 आप सोच सकते हो, लीस्ट फैक्टर है ऐसा सोचो, that's why, okay, so therefore minus minus plus, so m by n is half, so m is 1, n is 2, okay, so here initial dividing point कौन है, dividing point is r, initial point हो गया p और end point हो गया q, end point, initial point, dividing point becomes q, so position vector of r पूछा है, therefore position vector
ऑफ आर, m और n के टर्म्स में क्या होगा, कैन यू रिकलेक्ट? Therefore, position vector of r will be equal to external division है इसलिए m into, ओके नीचे क्या है, m minus m into position vector of q minus m into position vector of p. मैं याद रखूंगा m into position vector of end point q minus n into position vector of initial point p upon m minus n. Finish. Substitute कर दो respective values, you will get the answer. Okay. So position vector of a b को आप substitute कर दो, आ जाएगा आंसर. So कितना आएगा, m कितना है 1 into very very careful. q को मैंने उस टाइम गलत substitute किया था. q का position vector है a minus 3b, a minus 3b minus 2 into a minus 3b over 2a plus b to a. Whichever method is comfortable to you, select. No teacher will give you wrong if you do by this method or if you do by that method. That method is also given in few of the NCERT textbooks, reference books for NCERT textbooks. So no issue. So a bar minus 3b bar. एक स्टूडेंट से मेथड मुझे पूछी थी कि सर ऐसे कर सकते हैं. So I explained that method also. k bar minus 1 कितना आया, a minus 2 minus 3a and minus 5b upon minus 1 take out minus 1 common minus 1 into the a plus 5b full upon minus 1 gets cancelled. So must be 3a plus 5b. Yes, perfect. 3a plus 5b. Internal division के लिए अगर आपको करना है, I can show you internal division. So that is the a plus 5b. Suppose same question में नोट करके अगर उन्होंने पूछा होता कि डिवाइड इंटरनली, आप निकाल लो भाई, एक बार डिवीजन हो जाएगा तो फिर. और ये वेक्टर्स कैसा है कि अगर आपको थियरी आ गई तो फिर आपको सिलेक्टेड जो टिपिकल क्वेश्चंस है उसी में फोकस करना है. आपको फिर ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन हो तो सिंपल वर्ड वाले फॉर्मूला बेस वो तो आपको आ ही जाएंगे. दैट इज आंसर. ओके, दैट इज आंसर. पोजीशन वेक्टर ऑफ r कितना आया, 3a plus 5b. पोजीशन वेक्टर ऑफ q कितना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ q a minus 3b. पोजीशन वेक्टर ऑफ q a minus 3b. पोजीशन वेक्टर ऑफ p कितना था, 2a plus b. ओके, और उन्होंने एक्स्ट्रा भी पूछा है कि prove that p is the midpoint of r3. so position vector of midpoint of r3 निकालो. पोजीशन midpoint of r3 का midpoint का पोजीशन वेक्टर कैसे मिलता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ r plus पोजीशन वेक्टर ऑफ q upon 2. position vector of r plus position vector of q whole by 2 instead of. तो कितना आएगा आंसर, this will be आपको प्रूव कर रहा है इक्वल टू p. सो इतना आएगा 3a plus 5b, 3a plus 5b plus a minus 3b whole by 2. so 3a plus a will be 4a plus this आ जाएगा 2a plus 2a plus b आ जाएगा. so that is equal to 3a plus 5b plus a minus 3b whole upon 2. और हाँ, ये अगर आप ये रट्टा मारोगे बिना सोचे समझे कि इसका नोटेशन b, इसका नोटेशन q, इसका नोटेशन ये, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा. so 3a plus a कितना होता है, 4a plus 5b minus 3b is 2b upon 2. 2 कॉमन निकालो, 2a plus b whole by 2 कितना आया, 2a plus b which is position vector of p. तो आप इसे तो डायरेक्टली p is midpoint of
R2. ठीक है? Let me see if I can solve one more question. Just 1 minute. So I2 position vector of midpoint of RQ is equal to position vector of P. उसका मतलब क्या होगा? Midpoint of RQ P होगा. Therefore यही हमको प्रूव करना है. Midpoint of line segment RQ is P. Finished. अब इसी क्वेश्चन को अगर उन्होंने पूछा होता कि find the position vector of R if it is dividing internally, finish it off in it. तो फिर क्या है? कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा. फिर कोई भी चीज रहती नहीं है सिवाय के एक लैग्रांज आइडेंटिटी मुझे जो आपको सिखानी है, नथिंग एल्स. ओके, सो दैट वे वी कैन फिनिश. नाउ एक्स्ट्रा करते हैं. पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना था? पोजीशन वेक्टर ऑफ P था 2a plus b. और just one minute, let me see I can solve one more question इसके बाद. Yes, I can solve this. और फिर है position vector of Q कितना था? Position vector of Q था 2a plus b a minus 3 a minus b. ओके, अब इसके बाद इसके लिए point R divides line segment PQ from P side. उन्होंने क्या दिया है? Find the position vector of the point R. Divide the line segment joining P and Q. So R divides PQ from P side. ऐसा सोच लेगा. मैं कंसीडर कर रहा हूँ internally in ratio को इसको 1:2 है. रेशियो 1:2. हाँ, रेशियो क्या होता है? रेशियो है m/n. इंटरनल डिवीजन का होता है 1/2. सो देयरफॉर m/n इज 1/2. अगर आप ध्यान से लिखो m का वैल्यू क्या लिखता है? दिस फॉर्म में 1 और n 2. सिंपल. सो इनिशियल पॉइंट कौन, डिवाइडिंग पॉइंट कौन, एंड पॉइंट कौन, वो लिख दो. और यहां पे फॉर्मूला आएगा m इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट plus m into position vector of initial point on m plus n. इसे और चॉइस अगर आपको याद रख के करना है, डिवाइडिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ऐसे लिखना है तो सो देयरफॉर हियर डिवाइडिंग पॉइंट कौन है? डिवाइडिंग पॉइंट इज r. इनिशियल पॉइंट हो गया p और एंड पॉइंट हो गया Q. तो therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ R वो क्या है? M into पोजीशन वेक्टर ऑफ M b बार क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट वो क्या है? Q प्लस n into पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट व्हिच इज P अपॉन n प्लस n. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज m कितना है? 1 into what is position vector of Q? a minus 3b plus n कितना है? n is 2 into 2a plus b upon n plus n which is 1 plus 2. हाँ, इसका पीछे चेक मत करना, ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ. और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि सर मैंने 3 ही क्वेश्चन गिने हैं, बट we have solved actually 5 questions. और सारी थ्योरी का मैं रिवीजन दे रहा हूँ. काफी बच्चों को ये याद भी नहीं रहता. सो अच्छे तरीके से याद रखो. a minus 3b plus 2 का 4a plus 2b whole upon 3 कितना आएगा? a plus 3a sorry a plus 4a is 5a bar minus b bar divided by 3. Finished. So these kind of stuff we can ask for 1 mark MCQ और अगर maximum easy question for 2 mark इतना भी है ऐसा नहीं. ठीक है, मिड पॉइंट मैं नहीं बता रहा हूं, वो तो मैं बता चुके हैं. सो let's go to the next one more question. Okay, now the question is that
remaining is question number 1, question number 3. We have finished second, 4, 5, 6, 7 also we have finished, 8, 9, 10. So I believe 11th is also remaining. So we have solved, which question we solved today? We solved today 4. Okay, 4. So I believe 3 questions बाकी हैं, because we have finished 4th, 8th, 4th, 8th, 9th, 10th, 12th, 13th, 14th. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Yes. We will finish this. तो अब इसमें हमको ऊपर नहीं रहना चाहिए. Okay. So this way we have finished. Now, few questions which are remaining. वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करूंगा. पिछले वीडियो लेक्चर में आई प्रेफर, rather मुझे याद है मैंने 12, 13, 14, 8 और 4 किया था. 4, 8, 12, 13, 14 किया था. और आज के क्लास में मैंने 10th और 9th किया और एग्जाम्पल 11 किया. So now 3 questions are remaining. They are relatively easy. They are not at all tough. They are not at all tough. Then you can finish it off. पर हाँ, एक टॉपिक जिसमें काफी बच्चों को मिस्टेक या डाउट रहता है वो है I believe डायरेक्शन कोसाइंस. वो होता है डायरेक्शन कोसाइंस. तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर वाला टॉपिक काफी बच्चे याद नहीं रख पाते या वो भूल चुके होंगे. तो वो एक टॉपिक मैं रिपीट करूंगा और आपको मैं सिखाऊंगा. और उससे पहले एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं कि लैग्रांज एलिमेंट एक बार वापस लिखो. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैन बी करेक्ट. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ओके, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और लैग्रांज एलिमेंट मैं बाद में समझाऊंगा. लेट मी डू फ्यू क्वेश्चंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो हमने नहीं किया है. ओके, लेट व्हाट इज अ पैरेललोपाइड? अ पैरेललोपाइड is a 3D object. Is 3D object. It's a 3D figure having 6 planar faces. Each plane face is a parallelogram. Each plane face is a parallelogram. Is a parallelogram. Is a parallelogram. Okay. अगर आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है और 3 ऑर्थोगोनल एजेस का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल एजेस मींस ओके 3 ऑर्थोगोनल एजेस का मतलब क्या होता है? मीन एजेस इमर्जिंग फ्रॉम अ कॉमन वर्टेक्स मींस एजेस इमर्जिंग फ्रॉम कॉमन वर्टेक्स. वर्टेक्स. अब आपको याद होगा कि लेट अगर मुझे कंसीडर करना है पैरेललोपाइड, उसका वॉल्यूम, उसके कोई भी क्वेश्चंस दिए नहीं है टेक्स्ट बुक में. सो लेट अस गो वन और टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड. सो दो आप क्या करो, पैरेललोपाइड के एग्जांपल कौन-कौन से हैं? क्यूबॉइड और क्यूब. आप क्या करो, टिल्टेड क्यूब ड्रॉ करो. अरे टिल्टेड क्यूबॉइड ड्रॉ करो. टिल्टेड क्यूबॉइड ड्रॉ कर दो. ओके, नाउ suppose this is vertex O, this is vertex A, this is vertex B, this is vertex C. OA is B bar, OB is B bar आपको याद होगा, और OC is C bar. ओके, OA, OB, OC. ओके, O के सामने वाला सपोज वी आर इन रूम. O के सामने वाला वर्टेक्स, O के सामने वाला वर्टेक्स सपोज मैं इधर लिख देता हूं O डैश. A के सामने वाला वर्टेक्स A डैश में लिख देता हूं. टॉप में जाएगा C के सामने वाला वर्टेक्स C डैश और B के सामने वाला वर्टेक्स B डैश. ओके, इन पैरेललोपाइड लेट OA is equal to A
bar, OB is equal to B bar, OC is equal to C bar. Here OA, OB, OC are three quaterminous edges. Okay, are three quaterminous edges. OA, OB, AC. Here OA is equal to here OA, OB, OC are three quaterminous edges. Quaterminous edges emerging from vertex O, common vertex O. तो volume of parallelepiped क्या होगा? Mod of box of OA, OB, OC, mod of box of ABC. Empirical ये था मैंने फॉर्मूला दिया हुआ. इसके बेस पे बहुत ही पॉपुलर 1 मार्क क्वेश्चन आता है, इसलिए उसके सबसे पहले पढ़ते हैं. Volume of parallelepiped. Volume of parallelepiped क्या होगा? Mod of box of OA, OB, OC, which you can think as mod of box of ABC. You can say ABC are three quaterminous edges of the parallelepiped. Here vector A, vector B, vector C are quaterminous edges. Here A bar, B bar, C bar represent three, you can say quaterminous edges, quaterminous adjacent edges of parallelepiped. Quaterminous edges of parallelepiped from common vertex. That's understood. ठीक है. अब उन्होंने दिया है, सपोज they have given okay, now suppose the question is asked to find the volume of a parallelepiped. Find volume of a parallelepiped. कैसे निकालेंगे? मतलब अगर 3 पॉइंट दिए हैं, अगर उन्होंने 3 quaterminous edges दी हुई हैं, तो आपको वॉल्यूम पूछा है. अगर 3 quaterminous edges लेकर उन्होंने वॉल्यूम पूछा है, तो कैसे करोगे? अगर उन्होंने 3 quaterminous edges लेकर वॉल्यूम पूछा है, okay, find the volume of parallelepiped. Wait. Whose edges are, find the volume of parallelepiped. Find volume of parallelepiped having edges. Obviously directly दिया है. A bar is suppose I cap minus 2j cap plus bk cap. B bar is, you can write as 2i minus 3j, 2i minus 3j minus 2k, and the third vector C bar is 4 minus 4i minus j plus k. So volume of parallelepiped पूछा है, तो कैसे निकालोगे? A bar, B bar, C bar कॉम्पोनेंट से फॉर्म में लिखो, उसके 3 एजेस हैं. So solution, 3 edges of parallelepiped are, okay, पहले A bar कितना है? I minus 2j plus 3k. तो कॉम्पोनेंट के फॉर्म में कितना हो जाएगा? therefore A bar हो जाएगा 1 minus 2 3. फिर B bar लिखो. B bar कितना है? 2i. ओके, ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ. A bar is ABC में लिख देता हूँ. 3 edges of the parallelepiped are, okay, so A bar कितना है? A bar is 1 minus 2b. You can write this way in exam also. B bar you can write as 2 minus 3 minus 2, और C bar क्या आएगा? C bar कॉम्पोनेंट से फॉर्म में आएगा 4 minus 1 4 minus 1 1. तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या है?
मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी। और बॉक्स ऑफ एबीसी कैसे निकालते हैं? एक्सपांशन ऑफ 3 क्रॉस 3 टर्मिनल, जहां पे फर्स्ट रो आर द कंपोनेंट्स ऑफ B bar, सेकंड रो इज कंपोनेंट्स ऑफ B bar एंड थर्ड रो इज कंपोनेंट्स ऑफ C bar। एक्सरसाइज 10.5। आप देखो, अगर आप लोग ने किसी ने वो नहीं की है सप्लीमेंट्री मटेरियल का एक्सरसाइज mod of box of A, B, C. Now suppose you have not done this supplementary material की exercise, suppose you have not solved, then you are calling for trouble, because अगर ये क्वेश्चन आ गया उसमें से 1 मार्क के लिए supplementary material में से, तो फिर आप लोगों का पूरा वेक्टर का मेरा मेहनत 0 हो जाएगा। अब बॉक्स ऑफ ABC निकालो। बॉक्स ऑफ ABC, what is box of ABC? Expansion of a 3 cross 3 टर्मिनल, जिसका फर्स्ट रो है components of A 1 minus 2 3, second row components of B 2 minus 3 minus 2, the third row components of C 4 minus 1 1। एक्सपांड कर दो, आ जाएगा आंसर 1 minus 2 3 3 2 minus 3 minus 2 and 4 minus 1 1 4 minus 1 1। ओके, इसको एक्सपांड करो तो कितना आएगा? 1 into minus 3 minus 2 minus 2 minus plus 2 minus of minus 2 into कितना आएगा? 2 minus plus 8 plus 3 into minus 2 plus 12। अगर आपका एक्सपांशन डिटरमिनेंट भी नहीं आता, then you are calling for trouble। मैथ्स में सब कुछ कनेक्टेड होता है। प्लस 3 into 10 प्रेफर करने का ये भी है 1 into minus 3 plus 2 minus 3 1 into minus 3 minus 2 मतलब minus 5 कितना आना चाहिए? minus 5 लिखना आना चाहिए। स्टूडेंट्स i j k लिखेंगे, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो डॉट डॉट क्रॉस अगर आपको नहीं आएगा, अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा अच्छे तरीके से नहीं आता है, तो फिर 3D will be very tough। So 1 into minus 5 is minus 5 plus 20 plus 30 plus 20 wait 1 into minus 5 plus 2 45। So 45 आएगा। So box of ABC कितना आया? Box of ABC, therefore box of ABC is 45 तो फिर आप निकाल दो। फिर दिस इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कैलकुलेशन इसलिए कर दी है मैंने, आप प्लीज करेक्शन कर देना। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड is mod of box of A B C, which is mod of 45, which is mod 45 you can say cubic units, meter cube centimeter cube होता है, that's why this 1 minus 2 1 minus 2 3 1 minus 2 3 2 minus 3 minus 2 2 minus 3 minus 2 minus 3 minus 2 4 minus 1 1 4 minus 1 into minus 3 minus 2 minus 5 1 into minus 3 into minus 2 minus plus 2 into 2 plus 4 to the 8। okay, 1 into minus 3 minus of 2 सही है, minus of minus 2 2 plus 8 plus 3 into कितना है? minus 2 plus 12 सही है, minus 5 into 1 10 into plus 2 सही है, और 10 plus 3 30 plus 20 50 minus 5 is 45। Calculate mistake gone। That's all right। Let me see if I can solve one more question। okay, ये एप्लीकेशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के वन एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। और ये क्वेश्चन वाज गिवन इन यू कैन से वन ऑफ द NCERT एग्जाम्स, NCERT मतलब CBSE स्कूल के एग्जाम वाला में से ही मैंने एक क्वेश्चन लिया है। एक्चुअली इट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस इन द सप्लीमेंट्री मटेरियल ऑफ ओल्ड टेक्स्ट बुक, एक तो पुराना प्रीवियस एडिशन आया देखना। सो आज के लिए इतना काफी है, दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू। ओके, और मैं इधर आज क्लास एंड करता हूं। we will finish the remaining questions of this exercise in the next video lecture, and we will be starting with a new chapter 3D after maximum 2 classes। okay, 1 or 2 classes के बाद हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर 3D। दैट्स फॉर टुडे, और take care।